بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء و رسول ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے ایام ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قسم کھا کر بھی کہنا پڑے تو میں قسم کھا کر بھی یہ کہوں گا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور جمہور اہل اسلام کا یہی خیال ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ راتیں بنتی ہیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ لیکن اکثر علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قسم کھا کر بھی کہنا پڑے تو میں قسم کھا کر بھی کہوں گا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اکثر لیلۃ القدر 27ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ یہ 26واں روزہ، 26ویں روزے کی رات مغرب کے فوراً بعد 27ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اس نام کی وجہ کیا ہے؟
लैला और कद्र ये दो लफ्ज हैं। लैला कहते हैं रात को, और कद्र, कद्र के अरबी में माना है इज्जत व अजमत, या फिर हम ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कद्र व मंजिलत। इसके माना है इज्जत व अजमत। तो इस तरह लैलतुल कद्र का माना हो गया इज्जत व अजमत वाली रात, और ये इस वजह से इसका नाम इज्जत व अजमत वाली रात है क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला ने इस रात को बड़ी इज्जत और बड़ी अजमत से नवाजा है, बड़े एजाज और बड़े इकराम से नवाजा है। इस रात की सबसे पहली इज्जत और अजमत ये है जो इसको अल्लाह तबारिक व तआला ने अता की, कि अल्लाह तबारिक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। इस रात को कुरान करीम फुरकान हमीद बुरहान रशीद से निस्बत हासिल है। इस रात में अल्लाह तबारिक व तआला का कलाम नाजिल हुआ, जो इस रात की सबसे बड़ी शान है। और दूसरी इज्जत व अजमत इस रात की ये है, दूसरा एजाज इस रात का ये है जो अल्लाह तबारिक व तआला ने इसको अता किया। अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है? शब कदर की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। हजरात मोहतरम, इस रात की इबादत अगर कोई शख्स 1000 माह अल्लाह ताला की इबादत करे, 1000 माह शब्बेदारी करे और रातों को जाकर 1000 माह अल्लाह ताला की इबादत करे, उसे जितना सवाब मिलेगा लैलतुल कद्र की एक रात शब्बेदारी करने से, एक रात इबादत करने से 1000 माह की इबादत में उस शख्स को जितना सवाब मिला उससे ज्यादा सवाब इस एक रात में मिलेगा। ये इज्जत और अजमत अल्लाह तबारिक व तआला ने इस रात को अता फरमाई। और फिर तीसरी इज्जत और अजमत इस रात की ये है कि अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइका, कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि जिब्राइल अमीन अपने साथियों के साथ आसमान से उतरते हैं, जिब्राइल अमीन उतरते हैं और उनके साथ फरिश्तों का लश्कर होता है, और वो झंडा लेकर आते हैं और वो खाना काबा की छत पर लगाते हैं, और फिर वो अपने साथियों से कहते हैं कि फैल जाओ अल्लाह की जमीन में और हर घर घर में चले जाओ, घर घर में फैल जाओ सिवाय उस घर के। फरमाते हैं कि उस घर में ना जाना जिस घर में बगैर जरूरत शरी के कुत्ता हो। जरूरत शरी क्या है? जरूरत शरी ये है कि कुत्ता या हिफाजत के लिए रखा हो या फिर कुत्ता शिकार के लिए रखा हो। अगर कुत्ता हिफाजत के लिए ना रखा हो और शिकार के लिए भी ना रखा हो तो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। जिब्राइल अमीन अपने साथियों से कहते हैं तमाम घरों में दाखिल हो जाओ, उस घर में ना जाना जहां बगैर जरूरत शरी के कुत्ता हो, या फिर उस घर में ना जाना जहां नापाक जुंडी बदन हो, और उस घर में ना जाना जिस घर में तस्वीर अमेजा हो। इन 3 घरों के अलावा फरिश्ते तमाम घरों में दाखिल हो जाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करने वालों की हौसला अफजाई करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करते हैं। और जब वो अपनी मगफिरत की दुआ करते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। ये तीसरा एजाज है जो अल्लाह ताला ने इस रात को अता फरमाया कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। और चौथा एजाज जो इकराम जो अल्लाह तबारिक व तआला ने इस रात को अता फरमाया
वो ये है, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, और इस रात में फरिश्तों के साथ रूह उतरते हैं। अब ये रूह क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन किराम ने इस पर बड़ी तफसीर के साथ कलाम फरमाया है। सबसे पहले तो रूह से मुराद जिब्राइल अमीन है, रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अमीन है। वो इस रात को एक खास शान के साथ उतरते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के साथ शामिल होते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और दूसरी तफसीर रूह की यह है कि इससे मुराद एक फरिश्ता है, जैसा कि हदीस मुबारका में है कि एक फरिश्ता है जिसका कद जमीन से आसमान के बराबर है, जमीन से लेकर आसमान के बराबर जिसका कद है, और इसके बदन पर ला तादाद पर है। वो फरिश्ता, उसका नाम रूह है, वो इस रात को उतरता है और उसके बदन पर जितने पर है वो तमाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं इस रात में। ये दूसरी तफसीर है रूह की। और तीसरी तफसीर रूह की यह है कि इससे मुराद आइंदा साल जो रूहें दुनिया में आनी है वो रूहें हैं। उन तमाम रूहों को अल्लाह तबारक व तआला आलम अरवाह से जुदा फरमाकर रास्ते में किसी जगह ठहरने का हुक्म फरमाता है, और जब उनका टाइम आता है, उनका वक्त आता है दुनिया में आने का, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उस रूह को लेकर दुनिया में आते हैं और जिस बदन में उसने दाखिल होना होता है फरिश्ते उसको उस बदन में दाखिल कर देते हैं। ये तीसरी तफसीर है रूह की। चौथी तफसीर रूह की यह है कि रूह से मुराद अल्लाह ताला की रूहानी अनवार और तजल्लियात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला के रूहानी अनवार और तजल्लियात का नज़ूल होता है, अल्लाह ताला की रूहानी बरकतों का नज़ूल होता है, और तमाम मुसलमान अल्लाह ताला की इन रूहानी बरकतों से फैज़याब होते हैं। और पांचवी तफसीर रूह की यह है कि इससे मुराद हमारे वो मुसलमान अफराद, वो बुजुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी रूहें हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी रूहों को एक मौका देता है, वो इस रात को दोबारा दुनिया के अंदर आते हैं और अपने खानदान के हालातों का मुशाहिदा करते हैं। और अगर कोई उनके खानदान का शख्स इबादत कर रहा हो तो वो खुश होते हैं और उसकी इबादत में शामिल होते हैं और उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और अगर कोई इनके खानदान का फर्द इस रात की कदर नहीं करता तो वो उसे देखकर अफसुर्दा होते हैं, उसे देखकर परेशान होते हैं। ये पांचवी तफसीर है रूह की। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो पांचवा एजाज और इकराम इस रात को नवाजा है, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि इस रात में अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के फरिश्ते हर अम्रे इलाही को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर ले आते हैं और आसमान दुनिया पर लाकर रख देते हैं। अल्लाह ताला के आइंदा साल में जितने अहकाम हैं कि जिसने फोत होना है या जिसने दुनिया में आना है या किसी बादशाह की हुकूमत को जवाल होना है या किसी फकीर को हुकूमत मिलनी है, वो तमाम अहकाम लोहे महफूज से फरिश्ते लेकर आसमान दुनिया पर आ जाते हैं। ये पांचवा एजाज इस रात का है। ये पांचवी इज्जत व अजमत जो इस रात को अता की गई वो है। और छहवीं इज्जत व अजमत इस रात की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, कि ये रात सलामती वाली है तलुए फज्र तक। इस रात में सलामती ही सलामती है। और वही हदीस मुबारका जो मैं पहले बयान कर रहा था कि इस रात में
जिब्राइल अमीन के साथ फरिश्ते उतरते हैं। उसी हदीस मुबारका में है कि वो फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करने वाली बंदों की इबादत में शामिल होते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, उनकी इबादतों में शामिल होते हैं। और वो फरिश्ते अल्लाह ताला का नाम सलाम 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 ये पुकारते रहते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, या अल्लाह अपने बंदों पर सलामती फरमा, अल्लाह अपने बंदों पर सलामती फरमा। ये इस रात की 6वीं इज्जत और अजमत है जो अल्लाह तबारिक व तआला ने इस रात को अता फरमाई। ये 6 इज्जतें और अजमतें हैं जो अल्लाह तबारिक व तआला ने इस रात को अता फरमाई। इस वजह से इस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है, इज्जत और अजमत वाली रात। और फिर बाज रवायात में है कि इस रात में जिब्राइल अमीन और दीगर फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज उम्मतियों से मुसाफहा करते हैं। और उलमाए हकाइक इरशाद फरमाते हैं कि ये मुसाफहा बाज रोशन जमीर, जिनका जमीर रोशन होता है, उनको ये मुसाफा महसूस भी होता है। और इस मुसाफा की निशानी क्या है कि फरिश्ते जब मुसाफा करते हैं तो उस वक्त इंसान को क्या महसूस होता है। उलमाए हकाइक इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त बैठे बैठे इंसान के दिल पर रिक्कत तारी हो जाती है और इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में, और इंसान का दिल मोम हो जाता है। और जब ऐसी कैफियत तारी हो तो वो शख्स समझे कि इस वक्त फरिश्ते का हाथ उसके हाथों में है। ये कैफियत जब तारी हो तो उस वक्त वो शख्स अल्लाह ताला से जो कोई भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी वो दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना इसे याद रखने की, आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और हमें लैलतुल कद्र की कदर करने की और इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तफीद होने की, फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।